Good afternoon and welcome everyone to this live class on current affairs for 20th of August 2020. In this class, we are going to study the details of the issue that is going on, Contempt of Court Act, around the Contempt of Court Act in the light of Prashant Bhushan's, this case. We are going to see this editorial, and after that we are going to have the threadbare analysis. In a short while from now, you will be getting the PDF of this. You'll be getting the PDF of this on your Telegram group, the Integrated GS group and the Current Affairs group. And the PDF will also be uploaded on the website just opposite to this particular class, where there is a tab for downloading the PDF. Some of you are still not aware as to where to download the PDF from, so this information is from them, is for these guys, right? What is criticism and what is contempt? Whether a comment constitutes criminal contempt would necessarily be decided on the facts of each case, whether a comment constitutes criminal contempt or not. In a democratic country, criminal contempt has no place, right? Criminal contempt by judiciary has no place. If a person is raising a finger, if a person is casting if he is creating an air of suspicion around the role of a particular judge or what is happening in the judiciary, he should not be labeled as a contemner per se, right, without going into it. A recent order of the Supreme Court found advocate Prashant Bhushan guilty of contempt for two tweets. One relating to Chief Justice of India, astride an expensive motorbike, and other a comment that the Supreme Court, in his opinion, played a role in the destruction of democracy in India over the last 6 years. The last 6 CJIs, their contribution, how they have attracted the ire of media, or how they have been into limelight for wrong reasons. Deepak Mishra, KG Balakrishnan and other CJIs. For the purpose of the topic at hand, we are concerned only with the criminal contempt and not those willfully disobedient litigants who ignore the orders of the court. We are concerned only with the criminal contempt and not those willfully disobedient. If court is summoning a person, if that person is not going to the court, that is willful disobedience, right? Here the disobedience or contempt, that the one that we are going to talk about, is emanating from a person criticizing the court, which the court feels is beyond the reasonable limit. These two things are different. Contempt of court, insofar as a person is not obeying the orders of the court, is different. Contempt of court, insofar as a person is exercising his freedom of speech and expression, is an altogether different thing, right? You have to appreciate these small things. Section 2 of the Contempt of Courts Act 1971 defines criminal contempt as the publication of any matter or the doing of any other act which scandalizes or lowers the authority of any court. कोई भी ऐसा एक्ट जो कोर्ट की अथॉरिटी को डेनिग्रेट करे, कोर्ट की इमेज को टार्निश करे और डिग्निटी को कम करे. तो सेक्शन 2C of the Contempt of Courts Act 1971 defines criminal contempt as the publication of any matter or the doing of any act, scandalizes or lowers the authority of any court, prejudices or interferes with the due course of any judicial proceedings. ये वो काम है जो मीडिया रोज करता है ना? कैसे? आज हम ये फिनोमिना कहते हैं, आरुषि हेमराज मर्डर केस जो है, तलवार्स का जो केस था, नोएडा मर्डर केस, उसमें एक नया टर्म उस टाइम पे 2008 में इन्वेंट हुआ. क्या बोला जाता है? ट्रायल बाय मीडिया. तो ट्रायल बाय मीडिया interferes with the due course of any judicial proceeding in almost every case, invariably, inadvertently ये हो रहा है. But उस पे contempt of court नहीं लगाया जाएगा, because media is an organization, it's a phenomena. You cannot, any judge or any bench of the Supreme Court or High Court cannot afford to offend media. तो वो तो चल ही रहा है. Obstructs the administration of justice. Obstruction in the administration of justice is also being done by media. Investigative journalism, ये terms को note कर लेना है ना. ये सारी चीजें तो चल ही रही हैं. अब ये सारी चीजें किस आर्टिकल के अंडर जस्टिफाइड है? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किस आर्टिकल के अंडर है?
ये कीवर्ड्स में आप नोट करोगे, जेवीज ग्लॉसरी नाम के नोटबुक या कुछ भी लगाओगे, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इज done by media, is being exercised by media right as a right under article 19 clause 1 subclause A, freedom of speech and expression. Clear? So this is there. Now does this mean that one can never voice any criticism of judiciary? इन सब चीजों को सेक्शन 2C को आपको नोट करना है. Does this mean that one can never criticize judiciary? अब यहां से क्वेश्चन बनता है, इज द क्वेश्चन क्या बनेगा यूपीएससी में? Fair criticism of judiciary is permitted as per contempt of court or not? Discuss the clash between contempt of court act and civil liberties. We are going to understand this issue in next 1 hour. After that you would not be having any hesitation in writing an answer. Civil liberties, contempt of court versus situation क्यों हो गई है? Contempt of court versus civil liberties kind of a situation है. No, the law permits you to say regarding the functioning of the Indian courts forms the basis of this particular article. What the law permits you to say regarding the functioning of Indian courts forms the basis of this particular write-up. There is a thin line separating criticism and contempt. Freedom of speech is a fundamental right guaranteed to every Indian citizen under Article 19, Clause 1, Subclause A. That is civil liberties. Article 19 यहाँ पे आ गया, ठीक है, of the Constitution. All those subject to reasonable restrictions under Article 19(2), which we are going to cover today in our polity class as well, right? So this is there. Now CK in the CK Dapathari versus OP Gupta 1971. In this case, CK Dapathari and OP Gupta case 1971, Supreme Court held that the existing law of criminal contempt is one such reasonable restriction. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, that does not mean that one cannot express one's ire against judiciary for the fear of contempt. ये डर नहीं होना चाहिए कि जुडिशरी जो है contempt का चार्ज लगा देगी. As long back as 1968, Lord Denning MR set out guidelines in the matters of contempt of court. Lord Denning ने ये guidelines लिखी थी ब्रिटेन में, ठीक है. He stated that contempt is not the means to uphold the court's dignity. Contempt एक जरिया नहीं हो सकता कोर्ट की डिग्निटी को, शोभा को बनाए रखने के लिए. कोर्ट हैज टू अर्न दैट रिस्पेक्ट बाय डूइंग द राइटफुल जस्टिस, डूइंग द जस्टिस इन अ righteous manner. He said its jurisdiction is to be exercised, the jurisdiction of contempt provisions is to be exercised in a sparing manner. Very rarely you should exercise this. While welcoming the criticism, Lord Denning only requested that it be fair, since judges, owing to their status, are not in a position to refute the comments so leveled against them. Welcoming the criticism, they should be welcoming of the criticism, and at the same time they should themselves not stoop down to a level where they have to go behind every क्रिटिक. कोई किसी प्रशांत भूषण को पकड़ के बुला लिया, ठीक है, ये क्या होगा, अपने स्तर से, लेवल से नीचे की बात करने वाली बात हो जाएगी. दिस वुड बी लाइक बिलो द बेल्ट फॉर जजेस. इट वुड बी लाइक स्टूपिंग डाउन, इतना नीचे गिरना, है ना. यहाँ पे स्पेयरिंगली का मतलब सिंपल है कि सिंपल इंग्लिश है यहाँ पे कि बहुत रेयरली जहाँ पे कोई पर्सन जो है बहुत आगे निकल गया हो, बहुत ज्यादा घिनौना क्रिटिसिज्म हो रहा हो, तब. व्हाट डज द इंडियन जुडिशरी डीम परमिसिबल? What Indian judges deem permissible, assume to be permissible and impermissible. Supreme Court has held that if a comment is made against the functioning of a judge, it would have to be seen whether the comment is fair or malicious. ये देखना होगा comment fair है. अब जज अगर बाइक चला रहे हैं तो comment fair है, और अगर बीजेपी की लीडर की बाइक है तो उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कहां से हुई है करीबियां. चलो, जज की प्राइवेट लाइफ है, उसमें हमें नहीं जाना चाहिए, बट कमेंट तो फेयर है ना. मैलिशियस तब है जब ये कहा जाए कि जज बाइक नहीं चला रहे और
फिर भी चला रहे हो, राइट। और मैलिशियस तब भी है, ये भी कहा जा सकता है कि बाइक चला रहे हैं तो क्या गलत बात है, इट इज हिज प्राइवेट लाइफ। If the comment is made against the judge as an individual, the court would consider whether the comment seeks to interfere with the judge's administration or is simply in the nature of a libel or defamation. अगर defamation है तो फिर section 500A IPC का है उसके लिए, right? section 500A इसी से डील करता है। तो let me just tell you the crux of this. Yes, IPC section 5 deals with the defamation. तो जो जज है अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में किसी पर्सन को स्यू कर सकते हैं, ठीक है, अगर सिंपली लिबल और डिफेमेशन की नेचर का है। अगर कमेंट किसी जज के खिलाफ कुछ ऐसा है कि जज के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में वो बाधा उत्पन्न करता है, ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, तो गलत है। अब यहाँ पे जो CJI के खिलाफ जो कमेंट किया गया है वो ये कहा गया कि CJI is riding a bike even as he is not allowing the court to open and he is riding a bike without mask and helmet, है ना, even as because under the rubric of under the name of coronavirus the judiciary, the courts are closed. तो ये बात ठीक है, the court would have to determine whether the statement is fair, bona fide, defamatory or contemptuous. कॉन्टेम्पटुअस अगर है कोई स्टेटमेंट तो कोर्ट के दायरे में उसे डील किया जाएगा, तो दैट विल बी एन ऑफेंस टू जुडिशरी। बट अगर जज के पर्सनल जज के खिलाफ है तो फिर क्या है, वो लिबल या फिर डिफेमेशन का केस बनता है। तो जज अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में ये कर सकते हैं। अ स्टेटमेंट वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट इफ इट इज ओनली अगेंस्ट द जज इन हिज और हर इंडिविजुअल कैपेसिटी। अब यहाँ पे तो जज की इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये काम हुआ है। हाँ, ये कहा जा रहा है कि CJI इंडिविजुअल एक जज बाइक पे राइड एंजॉय कर रहे हैं और ये सब, लेकिन एट द सेम टाइम जुडिशरी को ओपन नहीं होने दिया जा रहा। क्रिटिसिज्म दोनों का है, ठीक है। जज इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी इज नॉट अलाउइंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो अब ऐसा तो नहीं है कि जज को ये कहा जा रहा है कि आपने पैसे लिए हैं या केस नहीं सुनवाई हो रही, ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा लापरवाह हो रहे हैं। इसमें डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में जज के काम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही, बल्कि जज को तो कहा जा रहा है कि आप काम करिए, कोर्ट को ओपन कीजिए, देखो कि इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ये क्रिटिसिज्म की CJI बाइक पे मास्क नहीं लगाया हुआ था या बाइक जो है स्टैंड स्टिल थी, स्टैंड लगा हुआ था, ये सारी जो कमेंट्री आ रही है तो उसको थोड़ा सा देखना चाहिए कि अगर पर्सनल क्रिटिसिज्म है तो CJI कैन सू हिम। देयर हैज बीन अ टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ जुडिशरी to use the institutional power to settle the personal score. जुडिशरी के पार्ट पे ये टेंडेंसी साफ दिखती है कि जुडिशियल पावर को, इंस्टीट्यूशनल पावर को यूज किया जाता है टू सेटल दी स्कोर, पर्सनल स्कोर। अगर किसी जज के खिलाफ किसी ने कुछ कह दिया, रिलेटिव्स को कुछ कह दिया, ये कहा कि किसी जज के बेटे के पास आय से ज्यादा संपत्ति है तो वो कहां से आई, राइट, उस केस में वो बेटे को केस फाइल करना चाहिए, लेकिन जज ये कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे सुई चुभ गई। तो ये जो छुई मुई वाला जो कल्चर है उसको थोड़ा कम करने की जरूरत है। कांटा लगा वाला जो सॉन्ग था ना, वो वाला कल्चर चल रहा है। तो जजेस शुड नॉट बी टेकिंग ऑफेंस एट द फॉल ऑफ एवरी हैट। ये कहने का मतलब है, रिफाइंड लैंग्वेज में थोड़ा फील आ जाएगा। Criminal contempt does not seek to afford protection to judges from statements which they may be exposed to as individuals. Just because they are in public office, criminal contempt judges को इन statements जो libel वाली या criticism वाली statements हैं इनसे नहीं बचाते, ठीक है। क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में दिया गया है उसका पर्पस ये नहीं है कि जजेस को इन स्टेटमेंट से, एज एन इंडिविजुअल जजेस को इन स्टेटमेंट से, पब्लिक क्रिटिसिज्म से बचाएं, नहीं। सच स्टेटमेंट्स वुड ओनली लीव द इंडिविजुअल लायबल फॉर डिफेमेशन। सेक्शन 500 IPC। डिफेमेशन जो है प्राइवेट केस फाइल किया जा सकता है। स्टेटमेंट्स विच अफेक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, अब जैसे जो कोर्ट के खिलाफ कहा गया कि कोर्ट की अथॉरिटी डेनिग्रेट करी गई प्रशांत भूषण द्वारा कि 6 CJIs के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए,
वो हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट की छवि को खराब करने का काम है। सीजेआई के अगेंस्ट जो कहा गया कि वो बाइक राइड कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल दायरे में ही देखा जाता तो बेटर होता, लेकिन ये जो दूसरा वाला जो काम उन्होंने किया है, अब उसको देखते हैं कि क्या वो भी गलत है या सही। कॉन्टेम्प्ट होता है कि किसी की छवि को आघात पहुंचाना, टार्निशिंग समबडीज इमेज, ठीक है। कॉन्टेम्प्ट, कोर्ट की अवमानना, कोर्ट की अवमानना। जैसे अगर आप किसी हिंदू या किसी और डेटी की मूर्ति को गिराते हो तो वो कॉन्टेम्प्ट है, अवमानना करना है ना, इंसल्ट करना है। कॉन्टेम्प्ट का सिंपल मीनिंग ये हो सकता है। अब अगर पिछले 6 CJIs का रिकॉर्ड हम देखें, दीपक मिश्रा, ठीक है, उनका रिकॉर्ड कुछ ऐसा रहा कि मास्टर ऑफ द रोस्टर के चलते 4 judges themselves had to come out in the press and they alleged that CJI is not assigning the constitutionally important cases to relatively senior judges, rather he is assigning the cases to his favorites. तो फिर तो वो जजेस ने भी क्रिटिसिज्म किया। 4 senior most judges of the Supreme Court, they came out open in the press. क्या CJI दीपक मिश्रा का क्रिटिसिज्म गलत है? उससे थोड़ी आगे आए तो अभी जो रंजन गोगोई, इनके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस लगे, जज खुद ही अपने केस में सुनवाई कर रहे हैं, जबकि एक लैटिन प्रिंसिपल है, नोबडी शुड बी द जज इन हिज और हर ओन केस। तो रंजन गोगोई की जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगे, चार्जेस गलत थे या सही, लेकिन उसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। तो इस बात में भी फेयर क्रिटिसिज्म तो है ना कि इन 6 जजेस के खिलाफ से। 2010 पे अगर जाऊं, केजी बालाकृष्णन ने ये बोला कि वो सेंट्रो वाले हैं, मतलब उनके पास सिर्फ सेंट्रो है, उसके अलावा एक सोने की रिंग है और अकाउंट में 10-15 लाख रुपए हैं। लेकिन बाद में पता लगा कि बेटे का बहुत बड़ा एम्पायर है और वो पैसे बेटे के पास कहाँ से आए उसकी जांच नहीं हुई। 2010 में CJI केजी बालाकृष्णन थे, ठीक है। बीच में कुछ अच्छे CJIs भी आए, जैसे कि जस्टिस TS ठाकुर और ये सब काफ़ी अच्छे जजेस भी आए जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया जुडिशरी में। और भी बहुत अच्छे जजेस हैं, लेकिन इन 2 जजेस का तो सीधे सीधे सर्कमस्पेक्ट है मामला। तो क्या वो फेयर क्रिटिसिज्म गलत है? एन अटैक ऑन अ जज इन हिज और हर ऑफिशियल कैपेसिटी डेनिग्रेट्स द जुडिशरी एज अ होल। ये कहां से हो गया? ठीक है। एंड द लॉ ऑफ क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट वुड कम डाउन अपॉन सच अ पर्सन अनलेस इट इज अ फेयर क्रिटिक ऑफ अ जजमेंट। ठीक है। एन अटैक ऑन अ जज इन हिज और हर ऑफिशियल कैपेसिटी डेनिग्रेट्स द जुडिशरी एज अ होल। जज के ऊपर कोई अटैक है अगर जज की इन ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो ऑफिशियल कैपेसिटी में क्रिटिसिज्म तो था, बट फेयर क्रिटिसिज्म था, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस उठाए गए थे। अब उन क्वेश्चंस को दबा दिया गया तो वो अलग बात है। वेरियस एग्जाम्पल्स, सेक्शंस 4 and 5 of the Contempt of Courts Act are similar to a defense a person may take in a case of defamation, that is fair comment. I will give you the points. Shubhangi, don't worry. There are points at the in the last section of this class. So, contempt of court are similar to the defense of similar to a defense that a person may take in a case of defamation, that is fair comment. In S. Mugolkar versus Unknown, Supreme Court ने 1978 में ये कहा, judiciary cannot be immune from fair criticism. And contempt action is to be used only when an obvious misstatement with malicious intent seeks to bring down public confidence. ठीक है। malicious intent मतलब wrong intent भी प्रूव होना चाहिए कि इंटेंशन गलत थी। ठीक है। misstatement के लिए सिर्फ misstatement के लिए नहीं, misstatement has to be proved in the court कि मिस स्टेटमेंट जो है, जो गलत स्टेटमेंट है, वो उसके पीछे इंटेंशन गलत थी। अब जैसे अगर मैं ये कह रहा हूं मेरे को ये कोई पर्सनल स्कोर सेटल करने की पड़ी हो, या मेरा जज के खिलाफ कोई पर्सनल अपना प्रेजुडिस हो या नेगेटिविटी माइंड में हो, ये चीज़ प्रूव होनी चाहिए। वरना अगर कोई मिस स्टेटमेंट करता है, कोई भी प्रेस में मीडिया पर्सन या कोई भी लॉयर प्रशांत भूषण जैसे अगर कुछ क्रिटिसिज्म करते हैं तो वो गलत नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर उसके पीछे कोई गलत इंटेंशन है कि इस पर्सन को इलेक्शन में नहीं जीतने देना, तो उसके ऊपर कोई आरोप लगा दिए, रेप के एलिगेशंस लगा दिए, वो गलत है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल साफ साफ दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कही है। तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रशांत भूषण अपने डिफेंस में कुछ ऐसा कह रहे हैं। नाउ इन दिस जजमेंट चीफ जस्टिस M.H. Beg opined that at times the judiciary adopts a magnanimously charitable attitude. जुडिशरी का जो एटीट्यूड होना चाहिए वो माफ करने देने वाला होना चाहिए, एक्सेप्टिंग वाला होना चाहिए, या टेकिंग थिंग्स इनटू देयर स्ट्राइड वाला होना चाहिए, कि अपने खेमे में चीज़ों को ले लिया, चलो कोई बात नहीं। इवन व्हेन अटरली अनचैरिटेबल एंड अनफेयर क्रिटिसिज्म ऑफ इट्स ऑपरेशंस इज मेड आउट ऑफ बोना फाइडे कंसर्न फॉर इम्प्रूवमेंट। क्या प्रशांत भूषण की इंटेंशन ये थी कि जुडिशरी को नेगेट करके वो खुद जज बनना तो नहीं चाह रहे थे? वो ये तो नहीं कह रहे थे कि मेरे पास आओ, या मैं सबसे अच्छा लॉयर हूँ, या मैं तुम्हारा ना FIR ना रिकॉर्ड, ना FIR ना रिपोर्ट, सीधा फैसला ऑन दी स्पॉट करूँगा। नहीं, उनका इंटेंशन क्या था? कंसर्न फॉर इम्प्रूवमेंट। these are the lines which you can write in your answer, ठीक है? This judgment you have to jot down just to back your claims. आप अगर हवा में बातें करोगे आंसर्स में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। Clear? There could be some internet problem today. Please bear with me because it is raining quite heavily here. Okay, the weather is not good, so that's why all the internet services are down. Now, Supreme Court held that judiciary cannot be immune from fair criticism and contempt action is to be used only when an obvious misstatement plus malicious intent, with malicious intent. अब समझ में आ गया ये? The same Justice Beg remarked after retirement that Justice H.R. Khanna's famous dissent in the emergency case, ADM Jabalpur case, Indira Gandhi का केस जो था, made no contribution to law but only to his popularity. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ब्रह्म प्रकाश शर्मा 1953 केस में डिड नॉट फाइंड जस्टिस बेग गिल्टी ऑफ कॉन्टेम्प्ट इस बात के लिए। जब जस्टिस बेग ने रिटायरमेंट के बाद HR खन्ना के डिसेंट के लिए ये बात कही तो HR खन्ना के बारे में बेग ने उल्टा सीधा रिमार्क किया। फॉर्मर लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया P. शिवशंकर referred to a landmark judgment of the Supreme Court, said once referring to this judgment of the Supreme Court that Mahadipatis like Keshwananda and Zamindars, तो जो बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, like Golaknath evoked a sympathetic code nowhere in the whole country except the Supreme Court of India. यानी कि यहाँ पे लॉ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जो अमीर लोग हैं, जो रॉयल्स हैं, उनके लिए सिंपैथी कहीं नहीं आई, पूरी कंट्री में उनके लिए सिंपैथी नहीं थी जब लैंड रिफॉर्म्स चल रहे थे, जमींदारी रिफॉर्म्स चल रहे थे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट उनको लेके भावुक हो गया कि हाँ, उनका राइट टू प्रॉपर्टी प्रिजर्व होना चाहिए। गोलकनाथ ने और केशवानंद भारती केस में ये क्या हुआ था, गोलकनाथ केस में, कि गोलकनाथ ने ये कहा था कि मेरे को जो है प्रॉपर्टी वगैरह मेरी ना स्नैच करी जाए। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन था इनका, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते थे और ये सब चीज़ें हुई थी। तो उस टाइम ज़मींदार्स वगैरह के लिए कहीं किसी गरीब, हमारी कंट्री इतनी गरीब थी कि किसी में के दिमाग में कोई सिंपैथी नहीं आई, लेकिन जुडिशरी के मन में काफ़ी सिंपैथी की भावना आई। एंड द बैंक मैग्नेट्स, बैंक चलाने वाले जो बड़ी बड़ी लोग थे, अमीर लोग थे, दे गॉट हायर कॉम्पेंसेशन बाय इंटरवेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म ये कर रहे थे हमारे उस टाइम के लॉ मिनिस्टर कि सुप्रीम कोर्ट कैपिटलिस्ट की फेवर में है। ही ऑल्सो सेड एंटी सोशल एलिमेंट्स दैट इज फेरा वॉयलेटर्स। उस टाइम सोने की स्मगलिंग होती थी, वो अमरीश पुरी की मूवीज में जो आप देखते हो, ठीक है, ब्राइड बर्नर्स, जो ब्राइड बर्नर्स दहेज की लालच में, एंड अ होल होर्ड ऑफ रिएक्शनरीज हैव फाउंड देयर हेवन इन द सुप्रीम कोर्ट। ये लॉ मिनिस्टर ने इतना क्रिटिसिज्म किया था। स्पीकिंग फॉर द सुप्रीम कोर्ट इन 1988, जस्टिस सब्यसाची मुखर्जी, एस मुखर्जी, काफी फेमस जज रह चुके हैं, found that these statements of law minister did not impair the administration of justice। यानी कि यहां पे तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट कैपिटलिस्ट्स की फेवर में, कैपिटलिस्ट्स की फेवर में बोल रहा है, स्मगलर्स की फेवर में बोल रहा है। तब भी जस्टिस सब्यसाची ने कोर्ट का पक्ष रखते हुए ये नहीं कहा कि लॉ मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट जो है कोर्ट के कामकाज में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। यानी कि M.H. Beg की स्टेटमेंट्स पे the judges of that time were living up to the statements of M.H. Beg। M.H. Beg ने क्या कहा था? The courts judiciary should adopt a magnanimously charitable attitude even when utterly uncharitable and unfair criticism is made। ठीक है,
Now, he only opined that language could have been milder given the minister's own legal background. Okay. He also said if anti-social elements and criminals have benefited. Now, if you compare the former law ministers Shiv Shankar's these statements with what Mr. or to what minister statements to what minister to what Prashant Bhushan has said today, they pale in front of the adverse commentary made by P. Shiv Shankar. अगर आज P. Shiv Shankar की statements को प्रशांत भूषण की स्टेटमेंट्स के साथ कंपेयर किया जाए, ऐसा लगता है कि वो तो समंदर था ये जो पी शिव शंकर ने कहा, और प्रशांत भूषण ने तो एक बूंद डाली है पानी की, है ना, क्रिटिसिज्म की सिर्फ एक बूंद है, तो फिर भी जुडिशरी ने उस पर आघात ले लिया, ऑफेंस ले लिया. If anti-social elements and criminals have benefited by decisions of the Supreme Court, the fault rests with the laws and the loopholes in the laws like FERA. The courts are not deterred by such criticisms. Court ऐसे criticism से रुकेगा नहीं. Truth is also a defense of matter. अब अगर बात में सच्चाई है प्रशांत भूषण की, तो that itself is a defense against contempt charges. ठीक है. ट्रूथ तो है ना कि वो बाइक पे सवार थे हमारे सीजेआई और मास्क तब नहीं लगाया हुआ था. बाइक नहीं भी चल रही थी तब भी मास्क तो लगाना चाहिए. और ऐसी बाइक है, हमारे सीजेआई जो हैं एजेड हैं, ठीक है, मतलब बाइक इतनी बहुत भारी है, अगर गिर गई तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और जुडिशरी का काम डिले हो जाएगा, ये भी सोचना चाहिए था. चलो मान लो कि हेलमेट नहीं लगाना था, लेकिन मास्क तो लगाना चाहिए. Truth is also a defense in the matter of criminal contempt if it is bona fide and made in public interest, as held by the Supreme Court in indirect tax practitioners. Indirect tax practitioners जो chartered accountants वगैरह होते हैं versus R.K. Jain. However, all these precedents जो past की ये precedents हैं did not come to the aid of activist अरुंधति रॉय. अरुंधति केस आया था. अरुंधति जो हैं आपको पता होगा कि फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, इन्होंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले लिया था. राजस्थान में ये सोशल वर्क करती हैं मैडम, बहुत अच्छा काम करती हैं मनरेगा वर्कर्स और उनके लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में. तो अरुंधति रॉय, व्हेन द सुप्रीम कोर्ट फाउंड हर गिल्टी ऑफ कॉन्टेम्प्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अ पिटिशन वाज फाइल्ड अगेंस्ट मिस रॉय व्हिच वाज डिसमिस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. हाउएवर इट वाज रॉयज रिप्लाई टू द पिटिशन which was held to be in contempt. रॉय का जो मैडम रॉय का जो रिप्लाई था पिटिशन का, वो उसको गलत माना कोर्ट ने. उस रिप्लाई में मिस रॉय हैड एडमोनिश्ड द सुप्रीम कोर्ट, क्रिटिसाइज्ड द सुप्रीम कोर्ट फॉर एक्टिंग विद undue haste in a frivolous petition. उन्होंने ये कहा कि फ्रिवोलस बेबुनियाद याचिका फाइल करी गई है कोर्ट में मैडम के खिलाफ, और कोर्ट ने उसको फटाफट से अपने कॉग्नाइजेंस में कैसे ले लिया, केस को एडमिट क्यों कर लिया. To a strong critique of the Supreme Court's decision in Sardar Sarovar Dam case. Supreme Court held that a statement that the court willingly issued notice on an unsubstantiated case. कोर्ट ने ये कहा कि ये कहना अरुंधति रॉय का कि कोर्ट ने जल्दबाजी में unsubstantiated petition को, याचिका को संज्ञान में लिया है, affected the reputation and credibility of the court before the public and therefore found Miss Roy guilty of contempt. तो अब आप इस केस को कंपेयर करोगे जो ये चल रहा था, एमएच बेग की स्टेटमेंट और जस्टिस सब्यसाची का ये कहना कि लोगों का ये कहना गलत नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट की जो टेंडेंसी हो गई है वो इनटॉलरेंस की हो गई है, impatience की. The above cases would show that whether a comment would constitute criminal contempt or not depends entirely on the facts and circumstances of each case. In conclusion, tweets or remarks by the conscientious citizens कंट्री के प्रति, कानून के प्रति अपनी जो है सद्भावना रखने वाले जो लोग हैं, कॉन्सेंशियस अगर सिटीजन्स ऐसा कर रहे हैं, सर्टेनली डू नॉट अफेक्ट द डिग्निटी ऑफ इंडियन जुडिशरी. टू कोट लॉर्ड डेनिंग, दैट मस्ट रेस्ट ऑन श्योरर फाउंडेशंस. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. अब आते हैं मेंस ड्रिल का क्वेश्चन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट अंडर द इंडियन लॉ? डज इट क्लैश विद the citizens' right to freedom of speech and expression? Guys, how many of you are attending the lecture? I just want to see the names of those who are not regular.
फटाफट से प्लीज टाइप P फॉर प्रेजेंट. All right. So today you have to attempt this question in your own language. Now, key points under the Indian law, the Contempt of Courts Act 1971 divides contempt into civil contempt. Contempt of Court Act में civil contempt है and criminal contempt है. Civil contempt is a willful disobedience to any judgment, decree, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट और प्रोसेस ऑफ अ कोर्ट. अगर कोर्ट ने किसी को समन भेजे और वो पर्सन अपीयर नहीं होता तो वो सिविल कॉन्टेम्प्ट माना जाता है. क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट इज द पब्लिकेशन वेदर बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन or by signs or by visible representation or otherwise of any matter or the doing of any other act whatsoever. कोई भी ऐसा act which scandalizes or tends to scandalize or lowers or tends to lower the authority of any court. It could be a district court, it could be a high court, it could be a Supreme Court. The Contempt of Courts Act is not only for the Supreme Court or High Court, it is for lower courts as well. If any comment, sign or any other speech or anything prejudices or interferes or tends to interfere with the due course of any judicial proceeding, then interferes or tends to interfere with or obstructs or tends to obstruct the administration of justice in any other manner. ठीक है, ये इसका सिंपल मीनिंग है जो हमारी लॉ में दे रखा है. अब ये काम तो आप देखो मीडिया आए दिन करता है. ऑब्स्ट्रक्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, व्हेन द केस इज सब जुडाइज, देन देयर शुड बी नो प्रीएम्प्टिव रिमार्क और क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द जजेस और द जजमेंट. ठीक है, सब जुडाइज केस पे कमेंट करना गलत है. पब्लिक ओपिनियन को या जजेस के माइंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये दिखाना कि मैंने एक स्टेटमेंट बोली, जैसे कि गुरमीत राम रहीम केस में ये हुआ था कि बहुत सारे प्रोटेस्टर्स ये कह रहे थे कि गुरमीत राम रहीम को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए. तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये कहा, दिस ऑब्स्ट्रक्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हैज़ टू स्टॉप इमीडिएटली. वी रिक्वेस्ट द बाबा टू टेल हिज फॉलोअर्स that they should go back to their respective homes immediately, and Gurmeet Ram Rahim had to tell his followers कि आप फटाफट से घर वापस जाओ, कोर्ट की उल्लंघना, कोर्ट के आदेश की उल्लंघना नहीं करनी और कोर्ट के बाहर इतना बड़ा जो जत्था है, जो लोगों का जो क्राउड है वो नहीं होना चाहिए पंचकुला में. तो ये सारे काम किसी भी तरह से अगर मीडिया ट्रायल बाय मीडिया कर रहा है तो दैट लीड्स टू ऑब्स्ट्रक्शन. ऐसे केस में कोर्ट क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट लगा सकता है. Now, punishment for contempt of court is also given in the Act. Only the Supreme Court and High Courts have the power to punish for the Contempt of Court Act, even if the contempt is for District Court or Subordinate Court, either with simple imprisonment for a term of up to 6 months or with fine up to rupees 2,000 or with both. In 1991, the Supreme Court has ruled that it has the power to punish for the contempt not only of itself but also of high courts, subordinate courts, tribunals functioning in the entire country. On the other hand, high courts have been given the special powers to punish the contempt of subordinate courts as per section 10 of the same Act of 1971. Clear है? Same Act of 1971. Constitutional background, Article 129 grants the Supreme Court the power to punish for contempt of itself. Article 129 Supreme Court को ये power देता है. Article 142 जो कि which gives the power in general, Article 142 gives the power to the Supreme Court to do complete justice. It enables the Supreme Court to investigate and punish any person for its contempt. Article 215 grants every High Court the power to punish for contempt of itself. So Article 129 and Article 215
primarily deal with this, right? Issues with the contempt law. Article 19 clause 1 subclause A of the constitution gives the right to freedom of speech and expression. So this has come to be a kind of versus kind of a situation. एक तरफ यहाँ पे कोर्ट का क्रिटिसिज्म की बात है, कॉन्टेम्प्ट की, वर्सेस फेयर क्रिटिसिज्म या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कुछ चेक्स हैं 19 क्लॉज 2 में, बट अगर टॉलरेशन नहीं होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक लीवे नहीं दिया जाएगा, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं इन द प्रोसेस कर्टेल हो रहा है. ठीक है. कर्ब द पीपल्स फ्रीडम टू स्पीक अगेंस्ट द कोर्ट्स फंक्शनिंग. द लॉ इज वेरी सब्जेक्टिव विच माइट बी यूज्ड बाय जुडिशरी arbitrarily to suppress their criticism by the public. तो फंडामेंटल राइट्स इसीलिए दिए गए थे कि अगर दोज इन पावर, जो लोग पावर में हैं, चाहे जुडिशरी में, चाहे आईएएस में, आईपीएस में, मंत्रिमंडल में, गवर्नमेंट में, they should not curtail our freedom, at least the freedom to speak. ठीक है. The need, judiciary ensures justice and equality to every individual and institutions. Therefore, just a minute. Therefore, the makers of the Constitution upheld the sanctity and prestige of the revered institutions by placing provisions, यानी कि respectful institutions जो हैं जैसे judiciary, by placing the provisions under articles 129 and 215 of the Constitution, which enables the courts to hold individuals in contempt if they attempt to demean or belittle their authority. तो हमारे Constitution makers ने ये समझा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस बात को समझा कि जो लोग जो जजेस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जुडिशरी का, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनको जो है डेनिग्रेट नहीं किया जाए, इसलिए रखे गए. इज द क्रिटिसिज्म अलाउड? यस. द कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 वेरी क्लियरली स्टेट्स दैट फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ एनी केस विच हैज बीन हर्ड एंड डिसाइडेड इज नॉट कॉन्टेम्प्ट. राइट. सो दिस इज देयर. 129 आर्टिकल जो है सिंपल लिखा हुआ है, इसमें रिपीट क्या करूं मैं, इसमें ग्रांट्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू पनिश फॉर द कॉन्टेम्प्ट. ठीक है. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आई विल एक्सप्लेन. स्वाति एंड देवयानी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने कॉन्टेम्प्ट के लिए, यदि कोर्ट की अवमानना की गई या कोर्ट को एक नेगेटिव लाइट में दिखाया गया, तो कोर्ट उसको प्रोटेक्ट कर सकता है. नाउ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स अमेंडमेंट एक्ट 2006. The statute of 1971 has been amended by the Contempt of Courts Amendment Act 2006 to include the defense of truth under section 13 of the original legislation. 1971 के इस एक्ट को 2006 में अमेंड किया गया ताकि डिफेंस ऑफ ट्रुथ अलाउ किया जा सके. सेक्शन 13 दैट ऑलरेडी सर्व्ड टू रिस्ट्रिक्ट द पावर्स ऑफ द कोर्ट, इन दैट सेक्शन 13 ने कोर्ट की पावर्स को कम कर दिया उस हद तक दैट दे वर नॉट टू होल्ड, कोर्ट्स अब किसी को गिल्टी या कॉन्टेम्प्टुअस नहीं ठहरा सकते, किसी भी कमेंट को या किसी पर्सन को इन एक कॉन्टेम्नर नहीं ठहरा सकते unless it would substantially interfere with the due process of justice. ठीक है. कोई भी किसी का रिमार्क कोर्ट जबरन ये नहीं कह सकता कि नहीं ये कॉन्टेम्प्ट है, unless substantial interference हो. अब यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है, ये काफ़ी सब्जेक्टिव टर्म्स हैं. These terms are very very subjective कि क्या किस चीज़ को आप सब्सटैंशियल इंटरफेरेंस कहोगे और किसको आप कहोगे नॉन सब्सटैंशियल. ठीक है. दिस बिकम्स वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस लॉ, फॉर द डिमांड फॉर दिस लॉ टू बी एबॉलिश्ड. कि कॉन्टेम्प्ट में सब्सटैंशियल इंटरफेरेंस क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ जस्टिस क्या होगा, तो ये सारी चीजें हैं. नाउ the amendment further states that the court must permit justification by truth as a valid defense. The court must permit justification by truth as a valid defense if it is satisfied that it is in public interest
and request for invocation. And the request for invoking the said defense is bona fide. Clear? तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं. Now coming to the other aspects quickly. ठीक है, ये समझ में आया. Further states that the court must permit the justification by truth as a valid defense. कि अगर किसी व्यक्ति पे कॉन्टेम्प्ट के चार्जेस लगाए जा रहे हैं और वो व्यक्ति यदि इस चीज़ को जस्टिफाई करना चाहता है कि हाँ उसकी गलती नहीं थी तो उसे करने दिया जाए. ठीक है, तो ट्रूथ अगर वो वैलिड डिफेंस के वे में प्रेजेंट करना चाहता है तो वो सही है. Now coming here, arguments in favor of retaining the contempt provisions, increasing instances of contempt and scandalizing. In the light of social media, Facebook and other things, a high number of civil and criminal contempt instances are being observed in various high courts and the Supreme Court. The high number of cases justify the continuing relevance of the contempt of court law. Constitutional source of contempt power. Supreme Court and High Courts derive their contempt power from constitutional articles 129 and 215. The Contempt of Court Act 1971 only outlines the procedure. देखो, अब अगर हम इसे abolish कर भी दें तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो दे ही रखा है. तो स्केलेटल फॉर्म में आर्टिकल्स 129 और 215 में ये चीज़ें दे रखी हैं. बट कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट उनको सिर्फ उनके लिए प्रोसीजर एनैक्ट कर रहा है. आउटलाइंस द प्रोसीजर. द एक्ट आउटलाइंस द प्रोसीजर इन रिलेशन टू इन्वेस्टिगेशन एंड पनिशमेंट फॉर कॉन्टेम्प्ट. Therefore, deletion of the offence from the act will not impact the inherent constitutional powers of the Supreme Court to punish anyone for its contempt. Affecting judiciary's reputation and eroding people's faith in judiciary. Increasing instances of contempt may reduce the overall impact of the law and lessen the respect. अगर बार बार ये इरोडिंग पीपल्स फेथ के जो मैटर्स हैं उनको इरोड किया जाएगा, ऐसे कोर्ट का क्रिटिसिज्म होगा पब्लिकली, तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा जनता का. बाय अबॉलिशिंग द ऑफेंस इन इंडिया इट वुड लीव अ लेजिस्लेटिव गैप. अगर ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट नहीं होगा तो फिर कोर्ट्स कभी भी कुछ किसी भी मुद्दे पे जो है ऑफेंस ले लेंगे. अभी तो ये एक्ट जो है सेक्शन 10 या सेक्शन 13 के चलते डिलिनिएट कर रहा है क्लियरली कि क्या ऑफेंस है क्या नहीं. क्लियरली नहीं है, एम्बिग्विटी है यहाँ पे. इस एम्बिग्विटी को दूर किया जाए. आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ये कहते हैं कि एक्ट शुड बी रिटेन्ड, अदरवाइज दिस विल बिकम हाईली ambiguous. Even though there is still ambiguity, but that ambiguity is not as much as there would be if this is abolished. क्योंकि आर्टिकल्स के जरिए कोर्ट के पास में पावर तो होगी ही. जैसे आज, जस्ट टू ड्रॉ एन एनालॉजी, जैसे आज आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 के चलते ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस पार्लियामेंटेरियंस को, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, लोकसभा को, राज्यसभा को, लेजिस्लेटिव असेंबलीज को, आर्टिकल 194 के तहत लेजिस्लेटिव असेंबलीज को, एमएलएस को ये पावर है कि अगर उनको कोई गलत बोलता है तो वो भी वहां पे आर्टिकल 194 का हवाला देते हुए, आर्टिकल 194 को साइट करते हुए एमएलएस ये कहते हैं कि देखो पार्लियामेंट की बेइज्जती कर दी, लेजिस्लेटिव असेंबली की बेइज्जती कर दी. ठीक है, तो ऑफेंड हो गए वो लोग, या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया. कलेक्टिव प्रिविलेजेस हैं और इंडिविजुअल प्रिविलेजेस हैं. तो वहां पे लॉ ना होने की वजह से ज्यादा कंफ्यूजन होता है. अगर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट नहीं होगा, सिर्फ आर्टिकल्स होंगे, आर्टिकल 129 और 215, तो जैसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को लेके ज्यादा कंफ्यूजन प्रिवेल करती है, वैसे ही कंफ्यूजन प्रिवेल करने लगेगी. समझ में आया ये पॉइंट? तो इट्स बेटर टू हैव अ लॉ wherever there are loopholes in the law, those loopholes should be tried to be plugged as much as possible, to the extent possible. तो जो लूप होल्स हैं उनको प्लग किया जाए, ना कि एक्ट को एबॉलिश करने की बात करी जाए. राइट, ये होना ज़रूरी है क्योंकि जुडिशरी का क्रिटिसिज्म स्पॉन्सर्ड क्रिटिसिज्म भी है. कभी कभी कुछ जजेस के खिलाफ जानबूझ के नेगेटिव चीज़ें मीडिया में लाई जाती हैं, कभी कभी सरकारों द्वारा, रूलिंग क्लास द्वारा, ताकि एक पर्टिकुलरली जो
इनकन्वीनियंट जज हैं उनको प्रमोट होने से, सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से रोका जा सके। ऐसी चीजों के लिए कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का होना जरूरी भी है। क्लियर? Impact on subordinate courts. The Constitution allows the superior courts to punish for their contempt. The Contempt of Court Act additionally allows the High Court to punish for the contempt of subordinate courts. Thus, if the definition of contempt is removed, if the Contempt of Courts Act is removed altogether, subordinate courts will suffer as there will be no remedy to address the cases of their contempt. And it has been observed that poor are still law abiding. अगर contempt of court act हट जाएगा तो criminal नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ civil होना चाहिए। ये बात भी ठीक है कि सिविल कॉन्टेम्प्ट होना चाहिए, क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट के प्रोविजंस को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जहां पे एक मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वहां पे ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हट जाएगा टोटली तो जो रिच हैं, जैसे कि वो आज भी तारीख पे तारीख डलने पे भी कोर्ट नहीं पहुंचते, कभी कभी सरकार के सेक्रेटरी भी कोर्ट नहीं पहुंचते, ठीक है। जैसे कि रोड एक्सीडेंट्स के मैटर पे सुप्रीम कोर्ट को बार बार जो ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरीज हैं स्टेट गवर्नमेंट्स में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उनको बार बार नोटिस भेजना पड़ता है कि आप कोर्ट आइए। सलमान खान जैसे लोग हैं कि जो तारीख पे तारीख एक्सटेंड करवाते हैं, तो कोर्ट के पास में ये पावर्स का होना ज़रूरी भी है। बट ये बेटर होगा कि ये पावर्स स्पेयरिंगली यूज़ करी जाएं और क्रिमिनल इसे ना रखा जाए, ठीक है। देन arguments against retaining the contempt provisions against civil liberties. A law for criminal contempt gets into conflict with India's democratic system, which recognizes freedom of speech and expression as a fundamental right. In this manner, the judiciary draws resemblance with the executive in using laws for a chilling effect on, जैसे कि executive ने या पार्लियामेंट, ये पावर कभी कभी आर्टिकल 105 के तहत जो पावर है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की, तो फॉर्मर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट V.R. Krishna Iyer famously termed the law of contempt as having a vague and wandering jurisdiction with uncertain boundaries. Contempt law, regardless of the public good, may unwittingly trample upon civil liberties. V.R. कृष्णा अय्यर ने ये कहा कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ जो है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो एक्ट है वो वेग है, ठीक है, ससिंक्टली या क्लियरली चीज़ों को नहीं बताता। जैसे कि हमने देखा ये पर्टिकुलर क्लॉज कि सब्सटैंशियल इंटरफेरेंस जस्टिस में है या नहीं, या कोई चीज़ अगर सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म जो कि कंस्ट्रक्टिव काम कर सकता है उसको भी कभी कभी गलत करार दिया जा सकता है, राइट। वेग है, वॉन्डरिंग जुरिस्डिक्शन है, कभी हाँ कभी ना, कभी कुछ चीज़ सुप्रीम कोर्ट को चुप जाएगी, जैसे अरुंधति रॉय के केस में चुप गई, कभी फॉर्मर लॉ मिनिस्टर का क्रिटिसिज्म का कोई असर नहीं हुआ। तो इसलिए अनसर्टेन बाउंड्रीज हैं इसकी कि ये लॉ में कि क्या क्रिटिसिज्म है और क्या कॉन्टेम्प्ट है, ये पता ही नहीं लगता। अब अगर ये पता नहीं लगता तो सिटीजन 24 घंटे इस डर में रहता है बोलूं या ना बोलूं, राइट, वो वाली चीज़ आ जाती है। तो ये फियर ऑफ लॉ is itself a flaw in this act. Wide scope of contempt. The definition of criminal contempt in India is extremely wide and wandering and indeterminable and can be easily invoked by the court even at the fall of a feather. Also, suo motu powers of the court to initiate such proceedings only serve to complicate the matters. ये एक अच्छा इसमें प्रोविजन है व्हेन आई वाज रीडिंग व्हाइल मेकिंग दीज नोट्स फॉर यू कि बाकी केसेस में कोर्ट के पास में सुओ मोटू पावर्स होनी चाहिए। व्हाट आर सुओ मोटू पावर्स? द पावर्स टू इनिशिएट द केसेस itself, the power to initiate or take into cognizance a case on its own. कोर्ट के पास में, ये जज के पास में पावर होनी चाहिए। बट जब कॉन्टेम्प्ट की पावर्स का मुद्दा आता है तो ये मैटर जुडिशरी नहीं कोई और लेके आए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। जुडिशरी खुद ही बोले ओ सुई चुभ गई हमें, आओ तुम्हें बुलाते हैं कोर्ट, ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ये तो वही हो गया कि तुमने, अगर किसी ने फादर को गलत बोला तो फादर ने बोला कि तुमने मेरा कॉन्टेम्प्ट करा है, 2 थप्पड़ लगा दिए, ठीक है। लेकिन अगर फादर की बात मदर रखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, सरकार रखे या कोई मीडिया में या कोई जुडिशियल एक्टिविस्ट हो वो करे तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। नाउ
International disuse of contempt doctrine. Already contempt has practically become obsolete in foreign democracies, with jurisdictions recognizing that it is an archaic law. डेमोक्रेसी जैसे जैसे डेमोक्रेसी कोशेंट बढ़ते चले जा रहा है, डेमोक्रेसी और ज़्यादा पेनिट्रेट होती चली जा रही है, लोगों में सिविल लिबर्टीज़ को एक्सरसाइज करने की बात और ज़्यादा आ रही है, तो जैसे लाल बत्ती की कोई जगह नहीं है आज, रेड बीकन की कोई जगह नहीं है, वैसे ऐसे एक्ट की भी कोई जगह नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आजकल बोला जाता है ना, लेट द मार्केट बी फ्री, let the people decide, let the market decide what is good and bad, what would be the price of X commodity or Y commodity. वैसे ही let the democracy be free, let the press decide, let the media decide, let the discussion and debate and decision decide what is good or bad. If something would be overly bad, there are people to stop these elements. अगर प्रशांत भूषण कुछ ज़्यादा ही गलत लिखेंगे तो मीडिया है उनका क्रिटिसिज्म करने के लिए, बाकी की इंस्टीट्यूशंस को भी काम करने दिया जाए. नाउ ठीक है, सिविल कॉन्टेम्प्ट के प्रोविजंस होने चाहिए, बट इतना ज़्यादा ये सिटीजन की लिबर्टीज़ के अराउंड जो फियर ऑफ लॉ है वो इटसेल्फ इज अ डेट्रीमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ द लॉ. Canada ties its test for contempt to real, substantial and immediate dangers to the administration. American courts also no longer use the law of contempt in response to comments on judges or legal matters. Right? In Mugolkar versus Unknown, ये जैसे मैंने पहले बताया, the court held that judiciary cannot be immune from fair criticism and a contempt action is to be used only when an obvious misstatement with malicious intent seeks to bring down public confidence in the courts or seeks to influence the courts. अब यहाँ पे एक दो चीज़ें और हैं जो आप देखोगे, तो ये 3-4 पॉइंट्स इसके हैं, 3-4 पॉइंट्स इसके हैं. ठीक है. एम्बिग्विटी, द कमीशन ऑब्जर्व दैट अमेंडिंग द डेफिनेशन, ये लॉ कमीशन ने ये ऑब्जर्व किया था, लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, लॉ कमीशन को ये मैटर रेफर किया गया था वेदर द कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट शुड बी एबॉलिश्ड और नॉट. तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर लॉ कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उसमें ये कहा गया अमेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टेम्प्ट विल लीड टू एम्बिग्विटी. दिस इज बिकॉज द सुपीरियर कोर्ट्स विल कंटिन्यू टू एक्सरसाइज contempt powers under the constitution. If there is no definition for criminal contempt in the act, superior courts may give multiple definitions and interpretations to what constitutes contempt. अगर clarity नहीं होगी, if there is no definition for criminal contempt, the commission suggested retaining the definition for purpose of ensuring clarity. Adequate safeguards. Law Commission noted that there are several safeguards built into the act to protect against its misuse. For instance, the act contains provisions which lay down cases that do not amount to contempt and cases where contempt is not punishable. Act में सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 ये केसेस के बारे में बताते हैं कि कहाँ पे contempt होगा, कहाँ पे नहीं. बट अभी भी लॉ में क्लैरिटी का और स्कोप है. जैसा कि हमने ये समझा कि यहाँ पे सब्सटैंशियल इंटरफेरेंस का मतलब क्या होगा, इससे तो फैक्ट्स ऑफ द केस ही दर्शाएंगे, है ना. आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर भी हमें लिखने हैं आंसर में, बट ये तो फैक्ट्स ऑफ द केस पे डिपेंड करेगा या ये जज के मूड पे भी डिपेंड करेगा कि जज को मास्क वाली बात बुरी लग गई या फिर बाइक वाली बात बुरी लग गई. तो ये चीज़ें जो है स्कोप तो है कि इसका मिसयूज किया जा सकता है. These provisions suggest that the courts will not prosecute all the cases of contempt. International comparison. In relation to offence of scandalizing the court, UK had abolished the offence in its contempt clause. However, Law Commission noted that there were two differences in the circumstances in India and UK, which warranted a continuation of the offence in India. Which warranted, जिस वजह से इंडिया में इसको एक ऑफेंस माना जाना चाहिए. नंबर 1, India continues to have a high number of criminal contempt cases, while the last offense of scandalizing the court in UK was in 1931. ये भी हो सकता है कि यूके में जजेस जो हैं ज़्यादा रिसेप्टिव हैं, दे टेक द क्रिटिसिज्म एज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, इसीलिए वहाँ पे ऑफेंस नहीं हुआ. ठीक है. हमारे यहाँ पे जजेस क्या हैं, छुई मुई हो सकते हैं कि चलो कांटा लगा, आ जाओ, चलो आज सुनवाई करते हैं, है ना. सेकंड,
The offense of scandalizing the court continues to be punishable in UK under the other laws. Law Commission of India therefore observed that abolishing the offence in India would leave a legislative gap. तो लॉ कमीशन ने ये कहा देयर इज अ नीड टू रिटेन द प्रोविजन रिगार्डिंग द कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स. हाउएवर, लॉ कमीशन आल्सो रिकमेंडेड द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टेम्प्ट इन द एक्ट ऑफ 1971 should be restricted to civil contempt, that is willful disobedience of judgments of the court and not in any other case. क्लियर है? तो ये था हमारा आज का एक टॉपिक बेस्ड एनालिसिस. न्यूज़पेपर में आज कुछ ज़्यादा बिल्कुल कुछ भी नहीं है. जो भी चीज़ें न्यूज़पेपर में उसको हम धीरे धीरे से टॉपिक बेस्ड एनालिसिस में लेके आएंगे. डोंट वरी. राइट? एनी डाउट? ऑलराइट, तो एक एक टॉपिक, आज ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया. वी विल अलाउ द डस्ट टू सेटल डाउन, ऑल द डिबेट्स एंड डिस्कशंस टू हैपन, एंड देन वी विल dig out the important points out of every issue, every piece of editorial, every piece of news article, and present it here in front of you guys. Yes, power, देखो पावर और अथॉरिटी में क्या डिफरेंस होता है. अब आपने क्वेश्चन पूछा है पावर, there is no accountability for power. ठीक है, that means you can exercise power as per your whims and fancies. There are no contours decided. Authority is when you are answerable. Authority comes along with responsibility. Power does not. ठीक है, पावर तब ज़्यादा बढ़ जाती है जुडिशरी की जब इलिटरेसी ज़्यादा हो, लोग जो हैं सिविक लिबर्टीज़ का एक्सरसाइज करना ना जानते हों. ठीक है, हमारे यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं कि उनके अधिकार क्या हैं. राइट? पावर इज अनऑडिटेड यूज ऑफ अथॉरिटी. राइट? सो दिस वाज ऑल इन टुडेज क्लास फॉर दिस पर्टिकुलर 1 आवर. रोज अगर 2 घंटे क्लास होगी तो रोज भी होगी, लेकिन कभी कभी 1 आवर की भी रहेगी. क्लियर? सो दिस वाज ऑल. अथॉरिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर डज नॉट. तो ये पूरा आज जो आपका मेंस ड्रिल का ये क्वेश्चन है, इसको आप आंसर लिखोगे. ठीक है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट अंडर इंडियन लॉ? डज इट क्लैश विद द सिटीजन्स राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? कॉमेंट 250 words. Please write this answer, everyone. All right? Thank you, guys. See you at 5:30 p.m. for class on Indian economy, in which we are going to talk about monetary policy. Thank you.